अपना ध्यान जो है वो दहिना या बायां की तरफ ना लगाएं। You need to focus ahead on one thing आपको एक ही चीज में अपना ध्यान को लगाना है, because you have to go front side. You have to go forward. क्योंकि आपको आगे की तरफ जाना है। So don't look back, don't look right to your right or don't look to your left. इसीलिए अपने पीछे की ओर ना देखें, अपने बाएं अपने दाहिने ओर ना देखें। When you keep looking on your right or left or back, you will stumble and you will fall down. जब वो अपने बाएं और दाहिने ओर या पीछे की ओर देखेंगे तो आप गिर जाएंगे। So let our mind be focused on one thing. तो आओ हम अपने मन को एक ही चीजों में लगाएं। Why it is saying in the word mind? क्यों वचन में लिखा गया है अपना मन को? Because our mind is very important. क्योंकि हमारा मन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because our human being, we follow where our mind lead us. क्योंकि हम मनुष्य जाति जहाँ हमारा मन है वहाँ हम गिर जाते हैं। So it's very important for us to keep our mind focused on one thing. इसीलिए हमारे लिए बहुत ही ये जरूरी है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, उसे हम एक चीज में लगाएं। So we need to focus on one thing. तो इसीलिए हमें एक ही चीजों में अपना ध्यान लगाना है। And this one thing is we need to focus our life on Jesus Christ. और ये एक चीज हमारे जीवन में जो लगाना है वो है यीशु मसीह। Not on any other, किसी दूसरे में नहीं, but on Jesus Christ. लेकिन केवल यीशु मसीह On में। Jesus Christ. केवल यीशु मसीह में। So I want to share the Bible passage from Philippians chapter 3. तो मैं वचन आज बांटना चाहता हूँ Philippians chapter 3 verses 12 to 14. फिलिप्पी 3 अध्याय का 12 से 14 वचन। Philippians chapter 3 verses 12 to 14. अध्याय 3 का 12 से 14। Pastor will read for all of us. मैं आप सभी के लिए पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। फिलिप्पी 3 का 12 से 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, Yes. पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, Yes. जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। Yes. हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, Yes. परंतु केवल यह एक काम करता हूँ Yes. कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर Yes. आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, Yes. ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Hallelujah. Let me look to God and pray. अब हम परमेश्वर की ओर ताकि और प्रार्थना करें। Thank you, Father. पिता धन्यवाद। We thank you, Jesus. प्रभु यीशु हम We धन्यवाद। thank you, Holy Spirit. आपका धन्यवाद। Thank you for being with us in our हमारे midst साथ right होने now, के लिए Lord. इस I वक्त pray that you will work in our midst, Lord. You will open up our hearts and minds, Lord, to you, Lord, so that we will focus on you, Jesus, Lord. Lord, hallelujah. Please, Lord, help us, Lord. हमें सहायता Help us करें। to love you, Lord. हमें सहायता No other, Lord. Help us to love you, Lord. With all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, Lord. Lord, thank you so much for this wonderful time, Lord. सुंदर We समय commit this wonderful time into your mighty care. In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. What a joy कितना आनंद है to focus on Jesus. यीशु मसीह में ध्यान को To लगाने। focus our life on Jesus. हमारे जीवन को यीशु So मसीह में लगाने। remember, if you focus your life on Jesus, याद रखिए, यदि आप यीशु मसीह में अपना ध्यान को लगाएं, even if you fall down, यदि आप गिर भी जाएं, you will wake up happily. आप खुशी के साथ फिर से उठेंगे। But if you focus on the world, यदि आप संसार में अपना ध्यान को लगाएंगे and if you fall down, और आप गिर जाएंगे, you will be destroyed. आप नष्ट हो जाएंगे। Your joy will no longer be there. और आपका आनंद ज्यादा नहीं रह पाएगा And you will be disappointed. और आप निराश हो जाएंगे। Depending our life on the world,
संसार में अपने जीवन को लगाना will always disappoint us. हर समय हमें निराश करती है। Your friend will disappoint you sometimes. आपके मित्र के द्वारा आपको निराश Even मिल your सकती है। family will disappoint you sometimes. आपके परिवार से आपको निराशा मिल सकती है। And so many things of this world will disappoint you in और your life. कई ऐसे चीज संसार के आपको निराश कर रही It है। will bring sorrow, sadness in ये your आपके life. जीवन में निराशा को दुखी को लेकर आएंगे, Bring worriness in your life. चिंता को लेकर आएंगे आपके जीवन में। But remember, लेकिन याद रखें, depending on Jesus यीशु Christ मसीह में आप ध्यान will रखेंगे, never bring these things in your life. आप कभी अपने जीवन में इन चीजों को नहीं लाएंगे। Depending on Jesus यीशु Christ मसीह में आपको निर्भर होकर will रहेंगे। always bring joy in your life. हर समय आपको खुशी लेकर आएंगे। The joy that He is offering, वो खुशी, वो आनंद जो आपको peace देंगे, that He is offering to वो us, शांति वो आपको देंगे। remember, is forever. याद रखिए, ये आनंद के लिए होगा। The things that we are enjoying on this earth is just for a जो short चीज हम period, इस संसार में वो आनंद कर रहे हैं अभी, वो कुछ ही पल के लिए and है। it's just temporary. ये कुछ ही पल के लिए है। Today you will have it, आज आप खुशी हैं and tomorrow you will not have. Tomorrow it will not be और there. कल ये आपके पास नहीं रहेगा। Today we are living. आज हम जी रहे Who हैं, knows tomorrow we may not be किसको there. पता कल हम नहीं रहेंगे। But depending on Jesus लेकिन Christ, यीशु मसीह में आप निर्भर हैं, remember, it's eternal. वो अनंत के लिए होगा। Focusing on Jesus Christ यीशु मसीह में आपका ध्यान रहने is से eternal. ये अनंत काल के लिए है। Therefore, we rather need to focus on Jesus Christ rather than the world. और इसीलिए हमें यीशु में निर्भर होना है ये संसार में। That's why I want to tell you that focus on Jesus Christ. इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ, अपना ध्यान को यीशु मसीह में Focus लगाएं। our life on Jesus Christ. अपना जीवन को यीशु मसीह में लगाएं। If the focus of our heart and mind is on this world यदि हम अपने हृदय, अपने मन को इस संसार में लगाते हैं and not on Jesus Christ, और यीशु में नहीं लगाते हैं, we will be loser. हम एक लूजर हो जाएंगे। We will miss the opportunity हम वो उस अवसर को खो देंगे and we will miss heaven as well. और हम वो स्वर्ग को खो देंगे। You and I will miss heaven as well. आप और मैं उस स्वर्ग को खो देंगे। As I was reading Matthew chapter 19, जैसे मत्ती का 19वां अध्याय, Matthew chapter 19 verse 16 to 30. उसमें वचन 16 से 30 19, 16 to 30. 16 से 17 वचन 19 मत्ती। When we read this story, जब इस कहानी को हम पढ़ते हैं, we see a young story of a young rich ruler. एक धनी युवक का कहानी को हम पढ़ते हैं, Who came to Jesus Christ with a question. जो यीशु मसीह के पास एक सवाल को लेकर के आया। He came to ask a question to Jesus. उसने यीशु के पास एक सवाल को लेकर के आया। So when he came to Jesus, जब उसने यीशु के पास आया, he asked Jesus, "Good teacher, उसने यीशु से कहा, स्वामी या गुरु, what good things should I do to inherit eternal life?" ऐसा कौन सी भला कार्य करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं? So Jesus replied to him. तब यीशु ने उसे उत्तर दिया। He said that, "Why do you call me good? यीशु ने उसे उत्तर दिया, गुरु क्यों कहते हो? No one is good भला क्यों कहे तो कोई भला नहीं, except one. एक को छोड़कर, That is God. वो प्रभु है। Only God is good." वो प्रभु केवल अच्छा है। This intention of this young man coming to Jesus Christ is, he thought himself that he is a very good person. एक धनी व्यक्ति यह सोच करके यीशु के पास आया कि वो तो अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहा था। So Jesus knows his intention and Jesus replied in that way. और यीशु ने उसके हृदय के बातों को जानता था और उसी रीति से उसे उत्तर दिया, That only God is good. केवल प्रभु ही अच्छा है। And he replied that in order to receive eternal life, you need to obey the commandment. उसने उसे उत्तर दिया, यदि तुम अनंत जीवन को पाना चाहते हो तो आज्ञाओं को माना करो। So the rich young ruler said, "Lord, which
which one? Very proudly he replied, which one? उस धनी युवक ने तुरंत पूछा कौन सा आज्ञा? Then Jesus said that you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. तब यीशु ने उसे कहा हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना और अपने माता पिता का आदर करना। Then this young man again proudly replied that all these things I have been doing from my young age. इस धनी युवक ने फिर से उत्तर दिया, मैं तो लड़कपन से ही इन आज्ञाओं को मानता आया हूँ। Then what should I do again, Lord, to have eternal life? फिर से उसने कहा तो मैं कौन सी फिर ऐसे आज्ञा को मानूं जो मैं अनंत जीवन को पाऊं? Because what you said, I have been doing all these things. क्योंकि जो कुछ आपने बताया उसे मैं पहले से करते आ रहा हूँ। Then Jesus said, you still lack one thing. तब यीशु ने उसे कहा तुम्हें अब भी एक चीज की घटी है। So I told you that this rich young ruler asked a question. मैं आपसे कहता हूँ इस धनी युवक ने फिर से उसे सवाल किया। And the real answer was given in this very passage. और इस वचन में उसका आंसर लिखा है। So what do I lack? उसने कहा मुझमें किस चीज की घटी है? Then Jesus said, go and sell all your possession and store up your treasure in heaven. Come and follow me. और यीशु ने उस धनी युवक से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा और अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। So this young man came and asked question to Jesus Christ. So when Jesus Christ gave the answer to this young man, this young man received happily. और जब पहले का जो सवाल था, जब उस धनी युवक ने यीशु से पूछा और यीशु ने उसे उत्तर दिया और उसने उस धनी युवक ने खुशी के साथ कहा, ये तो मैं पहले से करता आया हूँ। No. Did the young man, when Jesus gave an answer to this young man, that you still lack one thing, you need to sell all your possession and inherit your kingdom in heaven, come and follow me. When Jesus said these very words, did the young man accept it happily? सॉरी थोड़ा मैं पहले का वचन बोल गया। इस 21 वचन में यीशु मसीह ने उसे जब कहा कि तुम्हें सब कुछ को बेच करके और मेरे पीछे हो लेना है, क्या उसने स्वीकार किया खुशी के साथ? वो एक युवा ने बहुत खुशी से स्वागत किया नहीं ना, वो क्या हुआ, उदास हो गया, क्योंकि वो ये संसार का चीज जो है छोड़ने के लिए मान रही है ना। ऐसा हम लोग का जीवन में भी कोई जो है संसार का चीज हम बहुत फोकस किया, इसलिए हम छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल। यीशु मसीह का फोकस नहीं ना। ये युवा जो है वो सवाल पूछने के लिए आया, जो यीशु मसीह ने जो सवाल दिया है वो लेने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। हम लोग का क्रिश्चियन का जीवन में भी हम बहुत अच्छा भी हो सकता है, अच्छा इंसान भी हो सकता है, बाइबल भी पढ़ता होगा, प्रार्थना भी करता होगा, जो क्रिश्चियन ईसाई का जीवन में क्या करना है वो करता रहे होगा, मगर हम लोग का जीवन में जो यीशु मसीह ने क्या चाहिए, वो जब यीशु मसीह ने आपको पूछेगा आप किस तरीका से सवाल देगा, किस तरीका से स्वागत करेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो we need to focus on Jesus Christ. हमें यीशु पे ध्यान लगाना जरूरी है। If we focus on things of this world, यदि हम इस संसार की चीजों में हम ध्यान को लगाते हैं, it is very difficult to focus on Jesus Christ. तब हमें बहुत ही कठिनाई होगी कि हम यीशु पे अपने ध्यान को लगाएं। And it will be impossible for us to enter into the kingdom of God.
यदि ऐसा होता है तो ये असंभव होगा हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए। The things of this world will destroy the opportunity that God has given to you through Jesus Christ. इस संसार के चीजों से अगर हम ध्यान लगाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा यीशु के पीछे चलने के लिए। So don't put our mind and heart on the things of this world. तो हमारे हृदय हमारे मन को इस संसार की चीजों में मत लगाइए, But let our heart and mind be focused on Jesus Christ. और हमारे हृदय हमारे मन यीशु में फोकस करें, So that next time when Jesus give you an answer, you will receive happily and you will be with him in heaven. जब यीशु दूसरी बार आपको वो उत्तर देंगे तो आप उसे खुशी के साथ स्वीकार करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. So now focus on one thing. It's not easy in our life. और उस एक चीज को ध्यान करने के लिए ये आसान नहीं है, But it is possible. It is possible. लेकिन ये होगा या पॉसिबल है। And this is possible only through Christ ये Jesus. तभी संभव होगा जब मसीह में अपना ध्यान को। Hallelujah. It is possible ये संभव है through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा। People may say that it is impossible. लोग कहेंगे ये असंभव है, But with Jesus Christ it is possible. लेकिन यीशु मसीह के द्वारा ये संभव है। With your life in Jesus Christ it is possible. यीशु मसीह के द्वारा आपका जीवन में वो संभव है। So I want to tell you about the successful story of Paul. मैं एक सफलता जीवन को बताता हूँ वो पौल का। We see that Paul focused on one thing. हम देखते हैं पौलुस ने एक ही चीजों में अपना ध्यान को लगाया, And he was running a race. और उसने एक दौड़ को दौड़ रहा था। Focus on one thing and running a race towards that focus. एक ही चीजों में ध्यान को लगाना और अपने दौड़ को दौड़ना। And why Paul was successful in his ministry? और क्यों पौलुस अपने सेवकाई में वो सफलता पाई? Why Paul was successful in his Christian life? और क्यों पौलुस अपने मसीही जीवन में सफलता को Why पाए? Paul was successful in his missionary life? और क्यों पौलुस ने अपने सेवा यात्रा करने के दौरान सफलता पाई? Why Paul was successful in his evangelist life? क्यों पौलुस ने अपने प्रचार का कार्य में सफलता पाई? Why Paul was successful in preaching to so many people? क्यों पौलुस ने बहुत सारे जगहों में प्रचार करने में सफलता पाई? Because he focused only on one thing. क्योंकि ये एक ही चीज के द्वारा उसने सफलता पाई, वो एक ही चीज में अपना ध्यान को लगाया, That is Jesus Christ. और वो है यीशु मसीह में। If you focus on Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह में अपना ध्यान को लगाते you हैं, will be victory in Jesus Christ. आप यीशु मसीह में जयवंत हैं। So let us not focus on the past. तो आओ हम हमारे पिछले जीवन में ध्यान ना लगाएं। Let us not even focus on our bright past, the successful past. आओ हम अपने उस पिछले जीवन के जो सफलता या घमंड में जीवन में या ध्यान ना लगाएं। But let us focus towards the future glory of God. लेकिन आगे को अपना ध्यान को लगाए, परमेश्वर की महिमा में ध्यान लगाए। And Paul is running towards the future glory of God. पौल वो आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा था, उस महिमा की ओर, And because of his focus, और उसका उस आगे की ओर ध्यान लगाने के द्वारा that helped him to abandon and leave everything behind. और उसने इसके द्वारा सहायता पाई जो उसने पीछे छोड़ दिया। He left behind everything, उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, and he can able to leave behind everything और उसने वो पीछे छोड़ने के लिए भी उसने साहस को पाया, because his focus is on the future glory of God. क्योंकि उसने भविष्य के उस महिमा की ओर ध्यान को लगाया, On the future coming of our Lord Jesus Christ. और वो जो भविष्य आने वाले हैं वो प्रभु यीशु मसीह में। So remember, if we don't possess and have the spirit of the future glory of God, यदि हम अपने में उस महिमा, परमेश्वर की महिमा को हम अपने हृदय में उसे ना समझे, it is very
very impossible for us to run a race. तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल या कठिनाई होगी कि हम एक दौड़ को दौड़े। And even the message, even the ministry that we are doing right now will have no meaning in it if we don't have the spirit, if we don't have the spirit of the coming of the glory of God. और आने वाले उस महिमा का दिन को अगर हमारे उस आत्मा में नहीं है तो हम उसमें फोकस ना कर पाएंगे। So we need to have the future glory of God in our life, like Paul. If you want to run a good race, तो हमारे जीवन में उस चीज को होना है कि हम जो हम अपने दौड़ को दौड़ रहे हैं वो पूरा करने पाए। remember there is a future hope waiting for us. आप याद करें हमारे पास वो आने वाले आशा है। If there is no hope for the future glory, और भविष्य की महिमा का आशा अगर नहीं है, Paul will not take step and will not advise us to run a race. और पौलुस अपने कदम को नहीं बढ़ाता और हमें यह सलाह भी नहीं देता। But Paul knows that there is hope for the coming glory of God. लेकिन पौलुस जानता था कि एक आशा है For the believers who believe in Jesus Christ. जो विश्वासी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, For them they have a better place, better than this earth. और उनके लिए एक बेहतर जगह है And that is in heaven. और वह स्वर्ग में है। So Paul is telling us to run a good race here. इसीलिए पौलुस हमें सलाह करता है एक अच्छे दौड़ को दौड़ने के लिए। So how many of us running a good race today? तो यहाँ कितने हैं एक अच्छा दौड़ को दौड़ रहे हैं? Paul is also telling us पौलुस यह भी कह रहा है that though he was a good preacher, he was a good missionary, evangelist, he is preaching to so many people. वो एक अच्छा प्रीचर था, अच्छा एवेंजलिस्ट था, वो बहुत जगह सेवकाई करता था। But he is telling to us through his life that he is also yet to reach that place. और वो अपने जीवन में ये कह रहा है कि मुझे भी दौड़ना है, मैं भी उस चीज को पाने के लिए दौड़ रहा हूँ। He is also still running a race to win the prize. वो अब भी दौड़ रहा है कि उस पुरस्कार को पाए। No, even us, हम भी we might have accepted Jesus Christ. हमने भी यीशु मसीह को ग्रहण किया है। You might know who Jesus Christ हम is. जानते हैं यीशु मसीह कौन है। You might have given your life to Jesus Christ. अपने जीवन को यीशु मसीह आपने दिया है, But your life will not stop there. लेकिन आपका जीवन वहाँ पर रुका नहीं है। That will be the beginning of your running और race. वो जीवन आपका वहाँ से शुरुआत है एक अच्छा दौड़ को दौड़ने Until की। you meet Jesus Christ face to face, जब तक कि आप यीशु मसीह को मुलाकात ना कर ले आमने सामने करके, our race will not stop. हमारा जो यात्रा है या दौड़ है वो नहीं रुकेगा। Because many people think that once saved is always saved. क्योंकि कई लोग ऐसा समझते हैं मैं एक बार बचाया गया हूँ, मैं हर बार के लिए बचाया गया हूँ। No, we have to run a race. ऐसा नहीं है, हमें हर बार अपने दौड़ को दौड़ना है। Once we are saved, we need to run a race until we meet Jesus Christ. जब एक बार हम बचाए गए हैं तो हमें उस दौड़ को दौड़ना है। So how many of us are running a good race? तो कितने हैं जो अपना अच्छा दौड़ को दौड़ रहे हैं, Focusing on Jesus Christ. यीशु मसीह में अपना ध्यान को Let लगाकर। nothing distract you when you are running a race. और जब यीशु मसीह में अपना ध्यान को लगाकर दौड़ते हैं कोई भी आपको ना रोक पाएगा That you may lose the race. कि आपको कोई उस रेस में आपको कमजोर ना करे। So how Paul was successful in running a race? एक दौड़ में कैसे पौलुस ने सफलता प्राप्त The की? first thing that Paul was successful in focusing on one thing was और पौलुस ने अपने दौड़ में सफलता पाई एक चीज को ध्यान में रख कर के वो यह है, Paul always longed to have close fellowship with the Lord. और वह यह है कि पौलुस जो है वो हमेशा परमेश्वर के साथ संबंध बनाए He रखता था। always longed to have close fellowship with the Lord. उसने परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए रखता था। Because of that, it allowed him to continually seek the Lord's favor and in His presence. और वही चीज पौलुस को सहायता करती थी, उसे अगुवाई करती थी।
Likewise, even as we must continually long for close fellowship with और others. इसीलिए हम सभी के लिए भी यही है कि हमें यीशु मसीह के साथ अपना संबंध को बनाए रख करके दौड़ना है। If we want to experience His presence, if we want to feel His favor upon our life, यदि हम उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर जीना चाहते हैं, and the second thing is, Paul prayed continuously. और दूसरी जो है कि पौलुस जो है वो लगातार या निरंतर प्रार्थना करता था। And the reason of his prayer is, और उसका प्रार्थना का कारण यह है he prayed that he will dwell in the presence of the Lord all the days of his और वो life. प्रार्थना इसलिए करता था कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बने रह करके चल सके। How many of us are praying that we will dwell in the house of the Lord all the days of our life? कितने लोग आज हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि मैं परमेश्वर के घर में वो बनाए रह करके रह सकूं। How many of us, if we think that we are a safe sinner, a safe Christian, if we think that we are a safe sinner, a safe Christian, already यदि हम saved, समझते हैं कि हम एक बचाए गए क्रिश्चियन हैं, and already know who Jesus Christ is, या समझते हैं कि मैं पहले से यीशु मसीह को जान चुका हूं, how many of us are praying कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते that हैं, we will always dwell in the presence of the Lord all the days? कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं हमेशा प्रभु में बना रह सकूं। The third thing is, what Paul did was, और तीसरी जो है पौलुस ने वाह किया, he prayed again उसने फिर से प्रार्थना to करी have a close fellowship with God every single day. उसने प्रार्थना करी और हर दिन उसने परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखा। Remember, every single day he wants to have a fellowship with याद God. करें हर दिन वो परमेश्वर के साथ संगति करता Not था। only today, केवल आज नहीं, even tomorrow, केवल कल day नहीं, after tomorrow, केवल परसों नहीं, till he meet Jesus Christ. जब तक कि वो यीशु मसीह से मुलाकात न कर ले। Wanted to have this close fellowship with the Lord. हाँ, जब तक कि वो अपना संगति को, How many of us want this kind of fellowship with the Lord every single day? How many of us are doing? कितने लोग हैं जो इस प्रकार का संगति को आप रखते हैं यीशु मसीह के साथ। Fourth thing, the चौथा fourth बात है, one is, more than anything else in life, Paul wants Jesus Christ himself. और पौलुस इस सांसारिक चीजों से कई गुना या सबसे बढ़कर के वो यीशु मसीह अपने जीवन में More than चाहता है। anything else, हाँ, इस संसार के सब कुछ को छोड़कर बोल सकते हैं, even those wealth, those privilege, those opportunity, he left behind everything. उसने सब कुछ को छोड़ दिया। अपना जो उसका था, What he need is he only need Jesus Christ. उसको केवल एक ही चीज चाहिए था, वो है यीशु And मसीह। he wanted to be like Jesus. और वो चाहता था कि मैं यीशु की तरह हूँ। That is the reason why he lived like Jesus Christ. इसी कारण है कि वो यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जिया। He ate like Jesus Christ. वो यीशु मसीह की तरह व्यवहार करता था। He preached like Jesus Christ. वो यीशु मसीह की तरह प्रचार भी करता था। He had faith like Jesus और Christ. यीशु मसीह की तरह उसने विश्वास भी बनाए रखा। He continued to pursue Jesus Christ. He continued to pursue Jesus Christ because he wanted to be like Jesus Christ. वो यीशु मसीह की तरह होना चाहा क्योंकि वो यीशु मसीह की तरह करता था। That is what Paul did. ये जो है पौलुस ने किया। More than the world, he loved Jesus Christ. हाँ, संसार से कई बढ़कर उसने यीशु से प्रेम किया। More than he need the world, he need Jesus Christ. उसने संसार से ज्यादा चाहा कि अपने में वो यीशु जरूरत है करके। The fifth thing is, और पांचवी बातें जो है, Paul discovered that the real house is in the presence of God. और पौलुस ने उस चीज को जाना या खोजा कि वो सच में वो परमेश्वर का घर, The real house is in the presence of God. एक सच्चा घर ना वो परमेश्वर की उपस्थिति में। So we see that you go out and from your house, and if you stay in others' house,
you will never feel comfortable, right? यदि अपने घर से आप दूसरे के घर में जाएंगे तो उस घर में जाकर के वो अपना घर जैसा अनुभव नहीं करेंगे, You है ना? will never feel, right? ऐसा है ना feel कि the आप same. अपना घर जैसा उसको अनुभव नहीं करेंगे। Likewise, beside Jesus Christ, there is no other real home in our life that we are going to experience. और उसी प्रकार पौलुस भी यीशु में होकर के वो दूसरा चीज में अपना जैसा महसूस नहीं करता। We will never have peace. हमें शांति नहीं We मिलेगी, will never have the joy, हमें वो आनंद नहीं मिलेगा like the joy that we are going to have in Jesus Christ. और वो खुशी जो हमें यीशु मसीह में मिलना है। So the real joy is in the presence of Jesus एक Christ. सच्ची आनंद वो यीशु मसीह के उपस्थित होने में है। If you have Jesus Christ in your life, यदि आपके जीवन में वो यीशु मसीह you है, will experience the real joy in your आप life. आनंद करें, आनंद को आप पहचान पाएंगे, You वो will सच्चा आनंद को। you will experience the real home in your life. वो आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे अपने जीवन, वो सच्चे आनंद को। That is what whole life is all about. और इसी प्रकार का वो पौलुस का जीवन है। That is why he was successful in focusing on one और इस thing. प्रकार से पौलुस का जीवन एक सफलता जीवन पाया, वो अपना ध्यान को यीशु में लगा So करते। even as like Paul, और हम हमारे लिए भी जैसे कि पौल let us run the race. जो दौड़ है उसे हम दौड़े। Paul said that don't pay, forget those past things and move forward. उसने कहा अपने पिछले जीवन को भूल जाओ, छोड़ दो। Don't forget all those things, but move forward, run forward to win the prize which God has given to us through Jesus Christ. और उसने कहा आगे की ओर बढ़ता चलो, जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है। And this blessing, it includes the salvation that God has provided to every one of us. और वो एक उद्धार वो सभी के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। So the prize will be the salvation. और उस चीज का जो हमें मिलने वाला है वो उद्धार है, जो प्राइस है। The prize will be the conformity to Christ. We belong to Christ. और यीशु मसीह में होने के द्वारा ही वो हमें प्राइस या पुरस्कार मिलने वाला है। And we become the inheritance of God. और हम परमेश्वर के निज भाग हो जाएंगे। And we will have a home in heaven. और हमारे लिए स्वर्ग में एक घर होगा। Hallelujah. Hallelujah. That's why we need to run a good race. इसीलिए हमें एक अच्छा दौड़ को दौड़ना है। That leaving behind everything, हमारे पीछे सब कुछ छोड़ दो, we need to go forward. आगे की ओर बढ़ते चलो। And remember, if you want to go forward, याद रखें यदि आप आगे की ओर बढ़ते हैं, you need to leave behind certain things. बहुत सारी चीजों को आपको पीछे छोड़ना है। Unless and until you leave behind, it will be very difficult for you to move forward. जब तक आप उन चीजों को पीछे ना छोड़ दे, आगे जाने के लिए आपको कठिनाई होगी। So ask yourself, what are the things that I need to leave behind? इसीलिए अपने I आप need से to move पूछे forward. कौन से ऐसी चीज है जो मुझे आगे बढ़ने की ओर रोक रहा है। What are the things that I need to leave behind so कौन that सी ऐसी I can चीजें हैं focus on Jesus Christ alone? जो मुझे अपने पीछे छोड़ना है और आगे की ओर बढ़ना है। Ask yourself, what अपने are आप the things अपने आप को पूछे कौन सी that चीज, is troubling you, कौन सी चीज आपको तकलीफ कर that रही is है, holding you back to run a good जो race? पीछे की ओर आपको खींचे ले जा रहा है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। If we are yet to start running a good race, यदि आप एक अच्छा दौड़ को दौड़ना चाहते हैं, even today God is giving us an opportunity to every one of us आज to participate परमेश्वर here. आप सभी को एक अवसर दिया है। Let us live our life like Paul आओ हम अपने जीवन को उस पौलुस की तरह जिए and run like Paul. और हम पौलुस की तरह दौड़े। And while running towards the goal, let us have a close fellowship with और जब हम अपने दौड़ को आगे की ओर दौड़ने ले जा रहे हैं, तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को बनाए रखकर के Let us दौड़ना। always try to live in the presence of God. और हर समय अपने जीवन को जी रहे वो परमेश्वर के साथ जिए। Let us not love the world more than love the world and hate Jesus Christ. और संसार से वो प्रेम ना करे और यीशु मसीह से वो नफरत ना करे। Let us hate the world and
love Jesus Christ. लेकिन संसार को नफरत करके यीशु से प्रेम करें, Because everyone is running a race now. क्योंकि अभी जो है वो सबको एक दौड़ को दौड़ रहा है। No one has reached already. कोई किसी ने उस जगह में नहीं पहुंचा है। Everyone is running a race. हर कोई दौड़ रहा है, Including Reverend, including our Reverend, including every missionary, evangelist, and every one of us, we are running a race. हर कोई रेवरेंड, एवेंजलिस्ट या हर कोई एक दौड़ को दौड़ रहा है, ना कि पहुंचा। Because we are yet to reach. क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं, Because we are yet to meet Jesus Christ face to face. क्योंकि हम यीशु से मुलाकात करने वाले हैं आमना सामना करके। So unless and until we meet Jesus Christ face to face, और जब तक कि हम यीशु को अपने आमने सामने मुलाकात ना कर ले या भेंट ना कर ले, let us run a good race. आओ हम एक अच्छा दौड़ को A दौड़े, good race in Jesus Christ. एक अच्छा दौड़ यीशु मसीह में। If you love the world, यदि आप संसार से प्रेम करते हैं, you are hating Jesus Christ. आप यीशु को नकार रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। So let us love God. Let us love Jesus Christ rather than the world. यीशु मसीह से प्रेम कर करके अपने दौड़ को दौड़े। Finally, I want to leave this message for all of us. और हाथी में इस वचन को छोड़ने We read Revelation chapter 21 verse 4. Revelation chapter 21. इक्कीसवां अध्याय, Revelation chapter 21 verse 4. Can someone read for all of us? 21वां वचन का 4। Can someone read? 21वां अध्याय वचन 4। Revelation chapter 21 verse 4. प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 4। So you can also read. वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा Yes. और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, Hallelujah. ना शोक, ना विलाप, Yes. ना पीड़ा रहेगी, Yes. सभी बातें जाती रहेंगी। Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a joy. And God will wipe away every tears from your eyes. कितना खुशी की बात है यार, यदि आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, And there shall be no more death, उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, nor sorrow, ना शोक, nor crying. ना विलाप, There shall be no pain. ना पीड़ा रहेगी, For the former things have passed away. पहली बातें जाती रहेगी। This is very beautiful. कितना सुंदर। I'm going to end my sermon. Listen carefully to this. मैं इस वचन को अंतिम करने वाले हूँ और ध्यान से सुने। I'm going to explain this. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने वाले हूँ। What a joy. कितना खुशी, Jesus is telling us that He will wipe away all कितना our खुशी का tears बात from है our कि eyes. यीशु ने कहा है मैं हर एक के आंसू को पोंछ डालूंगा। You know, remember, you must have known the story of Lazarus and the rich man. आप में से कई लोगों को पता है लाजर और उस धनवान का। कितना लोग पता है लाजरस का और उसका रिच मैन, वो धनी का ना कहानी पता है ना। ये धनी का जो है बहुत इंजॉय कर रहा था संसार में। वो खाने पीने के लिए भी कोई काम नहीं था, वो जब खाएगा। और लाजरस जो ऐसा नहीं है, वो कौन था? वो तो ऐसा नहीं था। तो वो जो है वो लाजरस था ना। यस, जो वो बेकार था, वो भीख मांगता था, ऐसा आदमी था। वो बहुत गरीब था इस संसार में। तो जो ये धनी आदमी ने खाकर वो फेंकेगा, वो जाकर बुद्धा भी आएगा, वो भी जाएगा। वो ऐसा पकड़ कर वो दोनों ऐसा खा रहा था। आदमी था लाजरस जो है। तो जब ये दोनों एक दिन मर गया इस संसार में, वो एक जो है स्वर्ग में गया, एक जो है नरक में गया। उसका कहानी जो है आपको पता होगा। और जो नरक में गया, वो जो धनी आदमी जो है नरक में गया, वो सब जो देखा था, वो
स्वर्ग में देख लिया तो स्वर्ग में लाजरस देखा था, अब्राहम का हाथ में वो देख रहा था। तो वो अब्राहम को पूछा, ओ लाजरस को आने के लिए दे दो और मुझको एक चोक का पानी मेरा ना touch my tongue, to touch my tongue. Send Lazarus to dip at least a drop of water in my tongue. लाजर को भेज कि वो एक बूंद पानी मेरे जीभ में रखे। वो अब्राहम ने कहा नहीं होगा, और उसका बाद और ये जो ठंडी आदमी था और रिक्वेस्ट किया कि मेरा संसार में मेरा भाई लोग है, वो लाजरस को भेजकर उसको राजा करने के लिए दे दो कि ये नरक है और स्वर्ग भी है, ये दोनों है, चुनना पड़ेगा। So they have to choose. So they told this rich man requested to send Lazarus to teach that there is heaven and hell to his brothers. और उस धनी युवक ने कहा कि मेरे परिवार में लाजरस को भेज करके बता कि स्वर्ग के बारे में या नरक के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में। तो this Abraham said no, because prophets are there, the servants of God are there. If they don't hear from them, it will be impossible for them. और अब्राहम ने उससे कहा नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत सदताएं हैं। So here from this story we see that those who went to hell, they will remember every small thing of their mistake. और इस लाजरस और धनी युवक के कहानियों में से एक बात को रखते हैं कि जब नरक में हम लोग या नरक में जो जाते हैं उनको सारी बातें याद रहती है। We will remember every small thing that we committed against the Lord. और वहाँ हमें हर एक वो छोटे चीज, छोटे पाप जो हम अपने जीवन में किए हैं वो सारी चीजें याद रहती हैं। Also remember every person that is up there in heaven. और जो स्वर्ग में होंगे उन सभी को भी आपको याद रहेगा। And it will burn us. It will destroy us. और वो चीज हमें पीड़ा देगी या दुख देगी। And those people, remember, who went to hell will remember every single thing that he do on this earth. Every single thing that he do on this earth also go to hell. और जो नरक में गए हैं वो हर एक वो उस छोटी चीज को याद करेंगे अपने जीवन में उसने जो पाप किया है। But remember those who go to heaven. लेकिन याद रखिए जो स्वर्ग को गए हैं, Jesus will wipe away their tears from their eyes. जो स्वर्ग में गए हैं उनके आंखों से यीशु मसीह आंसू पोंछ डालेगा। They will not remember anything anymore. और वो लोग कुछ भी और याद नहीं करने वाले। Even their suffering, they will not remember. जितने भी दुख उन्होंने सहा है वो भी याद ना रहे। Even their family members who are in hell, they will not remember. जितने उनका अगर परिवार के सदस्य भी होंगे जो नरक में होंगे उनको भी याद नहीं करेंगे। Because if they remember, they will feel safe. क्योंकि जब वो याद करेंगे तो वो दुखी होंगे। But Jesus Christ has already wiped away everything from their eyes. और यीशु मसीह ने उनके आंखों का सारे आंसू को पोंछ डाला है। They will be only filled with the glory of God. और वो लोग केवल परमेश्वर का महिमा को अनुभव करेंगे। That is the reason why it says. यही कारण है कि यह कहते हैं। It says that, and there shall be no more day. और उसके बाद कोई मृत्यु ना रहेगी, No sorrow, कोई शोक ना रहेगा, no crying. रोना ना रहेगा, There shall be no more pain. कोई विलाप या पीड़ा ना रहेगी। For the former things have passed away. और जो पिछली बातें हैं वो जाते रहेगी। How good our life will be in heaven. आप याद करें कितना अच्छा हमारा जीवन होगा स्वर्ग में, And how miserable our life will be in hell. और कितना कष्ट जीवन वो हमारा वो नरक में होगा। Today you might be struggling, you might be going through persecution, you might be facing lots of things because of Christ.
Today you might be going through lots of things, struggling, difficulties for Christ. आज जितना भी आप लोग कष्ट से रहे हैं, सतावट से रहे हैं, दुख से रहे हो, वो कला यीशु मसीह के लिए है। But tomorrow, लेकिन कल Christ is going to wipe away the tears from your eyes. कल मसीह आपके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, आपके दुख को दूर कर And you देगा will not remember anything. और आप कुछ भी चीजों को याद करने The वाले only नहीं। thing you will remember is you will be filled with joy and एक ही चीज को आप याद करेंगे, वो आप अनुभव करेंगे, वो खुशी, वो आनंद को। let us not choose to go to hell. तो हमें आओ हम यह ना चुने कि हम नरक को जाए, We will forever perish. जहाँ हमें अनंत नष्ट की ओर या अनंत नष्ट मिले। But let us choose to go to heaven, लेकिन हमें यह चुनना है कि हम स्वर्ग को जाए, which God has prepared for all of us. जिसको परमेश्वर ने आप सभी के लिए, हमारे लिए ठहराया है। But even if God has prepared for all of us, और परमेश्वर वो चीज हमारे लिए तैयार करी है, it is you and I who need to choose. और वो आप और मैं है कि हमें उसको चुनना है। That is the reason why I just want to ask you. और इसी कारण है कि मैं आप सभी से यह पूछना चाहता हूँ, You want to choose heaven or hell? आप चुनते हैं उस स्वर्ग को या नरक को? If you want to choose heaven, यदि आप स्वर्ग को चुनते हैं, let us fix our mind on the things above. और हम अपने मन को, अपने आँख को उस ऊपर की ओर केंद्रित करें, Not the things on the earth. इस संसार की चीजों की ओर नहीं। May God bless us all. प्रभु हम सभी को आशीषित करें। Let us look to God and pray. अब हम परमेश्वर को